the chapter Russian Revolution, and we had just covered the introduction the previous day. So we concluded yesterday where the different groups were there, and it's every time whenever any change is there, so there is always a criticism. There is always the different groups of people. Some are there who are in favor of those changes, and few are there who are not favoring these changes. और ये हर जगह होता है. It's not a new thing. Human nature होता है. So here also, when the revolution was to be there, and it was, I mean, the crises were going on in Russia. So the Russia was also divided in few groups based on the different ideologies. They were the liberals, radicals, and the conservatives. Liberals were the people who believed that all religions should be tolerated. यहाँ पर आप हर ग्रुप के फीचर्स पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आप लोगों के. व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल्स और व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ रेडिकल्स. So anyhow, one of the groups which looked to change society were the liberals. They wanted a nation which tolerated all religions. Please underline this. हम लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स है. सो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं या डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजीज बेस्ड ऑन रिलीजन, इट इज मोर इन आवर कंट्री. ये जरूर है हमारी कंट्री में भी, बट ऐसा नहीं है कि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज वेयर अ सिंगल टाइप और वेरी लेस रिलीजन्स आर फॉलोड, तो वहां पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं. वहां भी होते हैं, और वहां भी जो रिलीजियस इनटॉलरेंस है, that is there in other parts of the world too. यूरोप में हम लोगों को ये लगता है नॉर्मली कि एक क्रिश्चियन रिलीजन ज्यादा फॉलो होता है वहां पर, तो उसमें आई मीन ओनली वन रिलीजन इज देयर, सो द कॉन्फ्लिक्ट्स नॉर्मली आर नॉट देयर. बट those people, they are more orthodox than we people are. So जो क्रिश्चियनिटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. One is the Protestants, one is the Catholics, right? जो Catholics हैं वो मानते हैं कि I mean they believe they are more purer in comparison to the Protestants. So ये जो Catholics हैं, ये माना जाता है कि इन्होंने जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी उसको एज इट इज फॉलो करना शुरू किया, राइट? अब उसमें से कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल वाज देयर who believe that the teachings of Christ are to be accepted, but few changes can be made, right? तो उन्होंने as it is जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को नहीं माना, उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए. नॉट उन्होंने किए, आप कह सकते हैं उनके फॉलोअर्स ने कुछ चेंजेस किए, और वो चेंजेस जो थे दैट पर्टिकुलर ग्रुप हैड एक्सेप्टेड, तो उन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहा गया. प्रोटेस्टेंट वर्ड आया है वर्ड प्रोटेस्ट से. वर्ड प्रोटेस्ट से ये एक ग्रुप बना, दैट वाज प्रोटेस्टेंट्स. तो ये जो कैथोलिक्स हैं वो ये मानते हैं कि these Catholics are more pure because they followed the teachings of Christ as it is, who was the founder of Christianity. इसको as it is इन्होंने फॉलो किया, और जिन्होंने as it is फॉलो नहीं किया, कुछ चेंजेस किए, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया टीचिंग्स के ऊपर, they were known as the Protestants. So यहाँ पर यूरोप में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ये चलते ही रहते, it keeps on going. और ये जो दोनों ही ग्रुप्स हैं, they are very very intolerant towards each other. They are very very intolerant. So ये जो liberals say, they wanted a nation which tolerated all religions, and we should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or the another. Please underline, the Britain favored the Church of England, and Austria and Spain favored the Catholic Church. Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. ये सारे features हैं liberals के, please इसे underline करिए. Liberals oppose the uncontrolled power of the dynastic rulers. So liberals ही वो लोग थे जो एक dramatic और एक drastic change जो थे वो demand कर रहे थे. They wanted to safeguard the rights of individuals against the governments. कि जो government है वो उन्हें जो citizens की rights हैं वो
देने चाहिए, एंड दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. सो ये चेंजेस सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं चाहते थे, दे वांटेड द चेंजेस इन द पॉलिटिकल सिस्टम टू. And the government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. जैसे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस समय कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो थे उन्होंने एक ये कंसेप्ट दिया था दैट द पावर कैन बी डिवाइडेड इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, राइट. और ये जो ऑर्गन्स थे ये थे इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स, आई मीन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जहां पर एक जो लेवल है वो दूसरे लेवल पे इंटरफेयर नहीं कर सकता है. तो सेम चीज जो लिबरल्स थी उनकी भी डिमांड थी कि जो जुडिशरी होनी चाहिए, जुडिशरी शुड बी वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, सो दैट कि जो गवर्नमेंट है वो उसमें इंटरफेयर ना कर सके. बट द थिंग वाज दैट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. नॉर्मली हम लोग डेमोक्रेट्स उन लोगों को कहते हैं जो एक सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, या एक से जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, दे बिलीव इन दैट कंसेप्ट. सो जो लिबरल्स थे दे वर नॉट द डेमोक्रेट्स. इट मींस दे डिड नॉट वांट दैट ऑल द पीपल शुड गेट द राइट टू वोट. उन्होंने भी इस चीज को थोड़ा सा आप कह सकते हैं फिल्टर्स जो थे कि द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट should not be given. So they were not in belief of the universal adult franchise. वो ये मानते थे कि जो प्रॉपर्टी मैन है या मैन ऑफ प्रॉपर्टी जिनके पास कुछ एक पर्टिकुलर उनका क्राइटेरिया होता होगा इस चीज को यू कैन से फिक्स करने का कि एक पर्टिकुलर इतनी अमाउंट की प्रॉपर्टी अगर है तो देन ओनली दैट पर्सन कैन वोट. एंड इवन दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर विमेन, कि जो विमेन है उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए. सो नो डाउट बहुत काफी इनके फीचर्स रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उसके डिफरेंट लेवल्स होने चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, द पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स, बट द वोटिंग राइट्स वर वेरी वेरी लिमिटेड. यस, हाँ जी. सो these liberals, as I said, they were having a very liberal and very open type of ideology, जहां पर बहुत changes को बहुत ही you can say they were wholeheartedly accepting it. Then was the other group. Anyhow, in contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. So जहां पर जो मेजॉरिटी है कंट्री की पॉपुलेशन वो आगे गवर्नमेंट बनाए, ये एक आइडियोलॉजी थी रेडिकल्स की. जब आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि ये जो कंसेप्ट होता है जहां पर मेजॉरिटी इज गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म. ये आप लोग 10th में जाके पढ़ेंगे. सो ये जो है इट नॉर्मली लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि जहां पर माइनॉरिटीज जो हैं इफ दे डोंट हैव द से इन द गवर्नमेंट, सो इट ऑलवेज लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट्स. अब श्रीलंका का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है. और टिल नाउ वहां पर एज सच कोई स्टेबल या एक आप कह सकते हैं एक पीसफुल कंट्री उसको हम नहीं मानते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स कीप ऑन गोइंग देयर, और एक सिविल वॉर जैसे सिचुएशन जो है वो वहां पर हमेशा रहती ही है. एनीहाउ, many supported women suffragette movements. It means women's right to vote. And unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property, but dislike concentration of property in the hands of few. अब यहाँ पर अगर आप लोग कॉलम बना लेंगे तो बेटर रहेगा कि how these ideologies were different. अब जो liberals थे उनकी ideologies क्या थी कि they just oppose the uncontrolled power, but they did not oppose the property to be there in the few hands. Private property के against नहीं थे liberals. जो radicals थे वो private property के against से no, not the private property, but they were opposing the privileges of the landowners.
जो liberals थे, they were having their different ideologies, इनकी more of political changes थी, whereas जो radicals थे, they were say कि social changes में ज्यादा उन्होंने stress out किया था. These people were not against the existence of private property, but disliked concentration in the hands of few. They believe कि private property सबके पास होनी चाहिए, लेकिन जहां पर कुछ जो कम लोग हैं, अगर वो सारी प्रॉपर्टी या सारा जो वेल्थ है अगर वो हैंडल करेंगे, तो these people were against that particular ideology. हाँ जी. Radicals. Third one was the conservatives. कंजर्वेटिव्स वो थे जिन्होंने रेडिकल्स को भी अपोज किया, उन्होंने लिबरल्स को भी अपोज किया. एंड दीज वर द पीपल हु बिलीव कि जो चेंजेस है सोसाइटी में आने चाहिए, बट दैट चेंजेस शुड बी वेरी वेरी ग्रेजुअल. एनीहाउ, conservatives are opposed to radicals and liberals, and after the French Revolution, however, even conservatives had opened their minds to the need for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some changes was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. So French Revolution से पहले तो change जैसा कोई concept था ही नहीं conservatives के लिए. After the French Revolution, they accepted, okay, the change can be there, but again, the past is also to be there, and gradually we should move to the new changes. So such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. Anyhow, हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब एंड हुआ, उसके बाद कितनी पॉलिटिकल चॉसनेस रही. उसके बाद अगेन नेपोलियन जो था, he became the dictator, and after the death of Napoleon, again monarchy was restored in France. उसके बाद फिर revolutions हुए, और ultimately later on से अराउंड 1848 उसके बाद जाके फ्रांस में जो डेमोक्रेसी थी वो सेटअप हुई. तो ये जो पॉलिटिकल चॉसनेस थी, it was not only there in France, it was there in all over the Europe. और उसके बाद एक जो थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी, the stability of say the democracy, so that has, you can say, inspired many of the countries to follow such particular political system. हाँ जी बेटे. Ma'am, I wanted to ask, like after Napoleon died, there was monarchy again, so they had to do a revolution after that. Yes, that you will read in your class 10th. कि after the death of Napoleon, again these monarchies in the Europe, they joined together, and they had again restored monarchy, not only in France but in the other parts of the Europe also, where these monarchies were overthrown by the people. Ma'am, this was also in parts like No, the monarchy ruled for many years after the revolution ended, and later on, because of again the monarchy, it's always a autocracy जहाँ पर जो kings हैं वो अपनी मर्जी से ही रूल करते हैं. तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स यूरोप में ऐसे हुए कि कुछ कंट्रीज जो थी, को नेशन स्टेट जो थी उसकी डिमांड करने लग गई. तो फिर फ्रांस में दोबारा 1848 में एक रिवॉल्यूशन हुआ, और उसके बाद फ्रांस में फिर डेमोक्रेसी जो थी वो रिस्टोर की गई. हाँ जी. Can you please repeat? हाँ, before the revolution, I mean, see, revolution जो होता है, it is not only one event. The reasons are normally, you can say, it carries on for many of the years, right? So ये exact revolution जो होता है ना, एक particular event होता है जिसके कारण वो spread हो जाता है. जो causes होते हैं वो बहुत time से these normally are carried out in the country. Okay, Sachit, you're asking about the terms communist and socialism. So anyhow, whenever these terms will be coming again in this chapter, it will be again explained in detail. Now the industrial society and social change. मैंने आप लोगों को शायद कल भी बताया था कि किस ढंग से जब industrial
चेंजेस या इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया में आया, तो नो डाउट द प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड बट द कंडीशन ऑफ वर्कर्स वाज very very pitiable. The political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded, and the industrial revolution occurred. Otherwise, industrial revolution जो था सबसे पहले आया इंग्लैंड में. इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था दैट वाज स्टार्टेड, और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ही जो ब्रिटिश थे दे कुड से अफेक्ट आवर ट्रेड अ लॉट, कि वहां पर बल्क में अब जो कपड़ा था, टेक्सटाइल जो था वो बन पाता था, सस्ता होता था, वो इंडिया में बेचा जाता था. तो इंडिया में भी जो लोग थे दे वर फैसिनेटेड बाय दिस मशीन मेड क्लॉथ. और ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इट वाज नॉट ओनली कि मशीन्स इन्वेंट हुई या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, इट आल्सो गिव एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जितनी इंडस्ट्रीज बनती गई उतनी लेबर की रिक्वायरमेंट बनती गई, उतनी ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत पड़ी, उतनी ज्यादा रेलवेज जो थे वो एक्सपैंड हुए, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट वर एक्सपैंडेड. क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं नॉर्मली ये हेवी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो रेलवेज जो थे वो दैट कुड कैरी हैवी लोड्स, राइट. तो उसके कारण ये था कि ये जो रेलवे से उसका एक्सपैंड होना बहुत जरूरी था. अब जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो मशीन्स बन रही हैं वो बट ऑब्वियस आयरन की हैं, स्टील की हैं, वो एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो बल्क में है और ये बहुत ज्यादा हेवी भी होता है. तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक efficient transport system जो था that was required. So ये not only it happened in England, it happened in all other parts where industrial revolution could reach. जहां पर cluster of industries इकट्ठी होनी शुरू हो गई और लोगों को employment मिलना शुरू हो गया. अब जो लोग गांव में रहते थे they also started coming to the cities in search of jobs. उससे क्या हुआ कि सिटीज थी तो उतने ही, और वो एरिया तो एक्सपैंड हो नहीं सकता था, एरिया ज्यादा से ज्यादा कंजस्टेड होने लगा. जो पहले टाउन से नाउ दे ग्रू टू द सिटीज. व्हेन मोर एंड मोर पीपल वर कमिंग टू द सिटीज, सो ये जो टाउन से अब ये सिटीज बन चुके थे. एंड आई मीन मेनी ऑफ द चेंजेस वर देयर, जिसमें कि अब मेन दे वर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, एंड नॉट ओनली मैन, इवन जो विमेन है, इवन छोटे बच्चे थे, ये भी फैक्ट्रीज में आकर काम करना इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि फैक्ट्रीज जो थी वो एक अच्छी जॉब जो थी इनको प्रोवाइड कर रही थी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब इतने सारे लोग एक साथ यहाँ सिटीज की तरफ आने लग गए तो हाउसिंग प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम, वाटर, फूड, दीज ऑल प्रॉब्लम्स वर देयर इन द कंट्री. एनीहाउ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट men, women and children to factories. Work hours were often long and wages were poor. Working hours इनके around 15 to 18 hours होते थे. 15 से 18 घंटे एक दिन में they had to work and the wages were very very poor. Reason ये था, अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उसके साथ एक और क्लास जो थी that emerged and that class was of the capitalists. हिंदी में इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पूंजीवाद. पूंजी इसको कहते हैं कैपिटल को, मनी को कहते हैं हम लोग. सो कैपिटलिस्ट थे वो लोग, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो एक रिच क्लास, दोज हु वर द फैक्ट्री ओनर्स, दोज हु वर द इंडस्ट्रियलिस्ट. और उनका काम क्या था कि लेबर्स को एम्प्लॉय करना, ज्यादा काम लेना, कम वेजेस देना और अपना प्रॉफिट बढ़ाना. इवन अगर आप हमारी कंट्री का भी एग्जांपल लेते हैं तो अभी भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, what they are doing the same thing. वो भी हम कह सकते हैं एक तरह से कैपिटलिस्ट ही हैं. Their main purpose is to make more and more profit. So ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही ये जो एक सिस्टम था या एक कल्चर था, एक डिफरेंट क्लास थी, वो इमर्ज हुई. इससे पहले तक क्या था कि इतना ज्यादा प्रॉफिट या इतना ज्यादा वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाज नॉट देयर.
इंडस्ट्रीज होती नहीं थी, स्मॉल स्केल होती थी, घरों में ही काम कर लेते थे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं होता था। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा डेफिनेटली प्रॉफिट भी उतना ही होगा, उतना ही ज्यादा एक जो क्लास है वो रिच है वो रिचर होती जा रही है, जो वर्किंग क्लास है वो पुअर से पुअर होती जा रही है। एंड दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Unemployment was common particularly during times of low demand for industrial goods. अब एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे उनको जॉब्स मिलने लगी, बट अगेन एज मेंशन कि जब कभी इंडस्ट्रियल गुड्स की कहीं कमी हो जाती थी, यहाँ पे एग्जांपल हम दे सकते हैं, अपने क्लास 8 में पढ़ा था नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया में कि व्हेन द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, पढ़ा है स्वदेशी मूवमेंट? तो उसमें क्या था कि इंडिया में द पीपल दे वर एनकरेज टू बाय एंड वियर द क्लोथ्स ऑफ इंडिया ओनली, इंडियन मेड जो सामान है वही यूज करना है। तो उसका क्या असर हुआ था कि हमारा जो इम्पोर्ट था, इम्पोर्ट फेल एंड ड्रास्टिक आई मीन फॉल इन द इम्पोर्ट ऑफ दीज फॉरेन और द इंग्लैंड मेड क्लोथ वाज देयर। तो उससे क्या हुआ था, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी बहुत ज्यादा एक अफेक्ट हुआ था, एक नेगेटिव इफेक्ट जो था दैट वाज देयर। सो ऐसे में कहीं अगर डिमांड कम हो जाती थी तो क्योंकि जॉब सिक्योरिटीज होती नहीं है तो इन लेबर्स को निकाल दिया जाता, तो दैट लेड टू इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। हाँ जी, they didn't try to. No, that's what I was just explaining. On one side, we were saying that industrialization se more job opportunities were there, but when the somewhere because of any of the political or any of the reason, when the demand for these industrial goods was reduced, so it normally led to the you can say unemployment, as कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो इन लेबर्स को काम से निकाल देते थे, तो वो जो लोग होते थे वो दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। प्लस सेकेंड रीजन ये भी था कि जितनी लेबर की डिमांड थी उससे ज्यादा लेबर जो थी वो विलेजेस से सिटी की तरफ आ रही थी। जितनी डिमांड है, जितनी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज में उससे ज्यादा, बिकॉज एवरीवन वाज नोइंग कि जॉब्स मिल रही हैं फैक्ट्रीज में, तो हर कोई गांव से या टाउन से सिटीज की तरफ आना शुरू हो गया, उतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो उससे क्या हुआ कि जो अनएम्प्लॉयड थे वो ज्यादा हो गए, more and more unemployed were there. Plus, housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. Liberals and radicals search for solutions to these issues. जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आती ही हैं, हाउसिंग है या सैनिटेशन है। अब आप मुंबई का अगर एग्जांपल लेते हैं तो मुंबई इट इज अ हाईली पॉपुलेटेड सिटी, राइट? और मुंबई जो है स्पेस उतनी ही है, स्पेस हम लोग लैंड तो बढ़ा नहीं सकते, आप लोगों ने पालमपुर वाले चैप्टर में पढ़ा था दैट लैंड इट इज अ बिगेस्ट कंस्ट्रेंट, कि लैंड जो है दैट इज अ फिक्स्ड वन, वी कैन नॉट इंक्रीज इट, राइट? सो मुंबई में भी ये हाल है कि लोग इतने आ रहे होते हैं वहां पे जॉब के लिए, और इतनी जॉब्स जितनी है ठीक है बट इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है एंड दे आर फोर्स्ड to do the lowly work there in the cities. Plus जहां पर ये रहते हैं क्योंकि इतनी इनकम नहीं होती है कि they cannot afford the good housing even, so ये जिन एरियाज में रहते हैं, अब स्लम एरियाज जो है that are very very common in मुंबई। आप लोगों ने पिछले किसी क्लास में पढ़ा था अबाउट धारावी, धारावी जो है वो एक स्लम एरिया है मुंबई में एंड दैट इज द लार्जेस्ट स्लम एरिया इन एशिया। अदरवाइज तो आप यहाँ से लुधियाना जाए ना, तो लुधियाना में भी आपको कई जगह स्लम एरियाज जो हैं आपको मिल जाते हैं। मतलब इट्स वेरी कॉमन क्योंकि वहां पर भी फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, लेबर बहुत ज्यादा आती है, और आई मीन ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशंस में दे आर फोर्स्ड टू लिव। इवन मैंने पहले ही बताया होगा कि दिल्ली भी अगर जाना पड़े आप लोगों को, दिल्ली भी रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर भी मतलब आपको यू विल फाइंड मेनी मेनी ऑफ दीज स्लम्स। ये बात अलग है कि ये जो स्लम एरियाज होते हैं दीज आर अ वेरी गुड वोट बैंक, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन स्लम एरियाज को हटाने भी नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो एक बड़ा अच्छा वोट बैंक होता है, इनको बड़े अच्छे से एक लुक्रेटिव ऑफर्स दे दिए जाते हैं और ये लोग भी नहीं हटते हैं। और अदरवाइज जो वो है भी गवर्नमेंट की जमीनें, ऐसा नहीं कि इनकी खुद की जमीनें जहां पर ये रह रहे हैं, दैट इज द लैंड ऑफ द गवर्नमेंट,
बट गवर्नमेंट उनको हटाती नहीं है क्योंकि पूरे वोट्स जो है उनको यहाँ से मिल जाते हैं। और अदरवाइज तो कई ऐसे स्लम एरियाज अब तो इतने डेवलप से भी हो गए हैं कि दे आर हैविंग मेनी ऑफ द फैसिलिटीज इन देयर स्लम्स देयर। बट एनी हाउ बॉटम लाइन ये होती है कि यहाँ पर हाउसिंग सैनिटेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने कई मूवीज में भी देखा होगा, कई बार इस्लाम एरिया उसमें वहाँ शूटिंग भी होती है, दिखाए जाते हैं। और जहाँ पर हाँ जी, ओके, रजनीकांत की मूवी आई थी काला, ओके। एनीवन, नायक मूवी आई थी अनिल कपूर वाली, हाँ जी, ओके, गली बॉयज, आई डिडंट सी दैट मूवी बट ओके। सो कई ऐसी बॉलीवुड मूवीज हैं जहाँ पर ये बहुत सारे इनकी शूटिंग वगैरह होती है। बट एज आई सेड कि इतना अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, बट स्टिल इन्हें रिमूव नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस। Anyhow, almost all industries were the property of individuals. अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि गवर्नमेंट का रोल कम था एंड these industries were the property of individuals. जहां पर individuals या प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा है वहां पर exploitation that is definitely there. बिकॉज जितने भी प्राइवेट ओनर्स होते हैं उनका पर्पस सर्विस नहीं होता है। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है, प्राइवेट सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पढ़ा आप लोगों ने? तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। क्वेश्चन था शायद आप लोगों का, मे बी शायद 8th में था कि व्हाई द गवर्नमेंट स्कूल्स why these services are not provided by the private owners, these are provided by the government. हाँ नहीं, that's what I'm just quoting it up. 8th में था, 7th में था कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं that are provided by the government, why not by the private individuals? रीजन ये है कि उनका मोटिव जो है वो सर्विस नहीं होता है, उनका मोटिव होता है मोर एंड मोर प्रॉफिट मेकिंग, राइट? सो एज आई सेड कि जहां पर इंडिविजुअल ओनर्स हैं वहां पर वो प्रॉफिट मेकिंग रहेगा, और प्रॉफिट मेकिंग है तो इट मींस मोर वर्किंग आवर्स, लेस वेजेस. दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन phenomena, common concept that is being followed in these private industries. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. जो रेडिकल्स और लिबरल्स थे वो खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, खुद भी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स थे, बिकॉज हमने पहले पढ़ा कि दे डिड नॉट अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे जस्ट अपोज दैट द कंसंट्रेशन शुड नॉट बी देयर इन द few hands. So anyhow, having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged. Please को underline करिए, आप लोगों को आंसर फ्रेम करने में हेल्प करेगा. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. So they believe कि और ज़्यादा trade और ज़्यादा industries जो हैं वो सेटअप की जानी चाहिए, so that people will get more jobs, and they wanted that citizens should also get more education, so that the skilled labors can be produced. हाँ जी बेटे. Like it is written that the radicals oppose the private the concentration of property in the hands of, and here it is written that the industries are the property of individuals. The radicals also had the radicals, liberals, they were the employers, they were the industrialists, and they were the property owners. They had already earned a good wealth. I mean, a richer class. So like why did they oppose the concentration? They had the land. See, it is always a ironical situation always. Anyhow, हम ये कह सकते हैं all liberals were not there, but yes, many liberals were there who were the factory owners. हाँ जी. See, quite possible that all industrialists may not be a capitalist. Capitalist क्या है? वो system जहां पर more profit making पे stress दिया जाता है.
ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट वो पर्सन है जो इंडस्ट्री का ओनर है, अब वो इस पॉलिसी को फॉलो करता है कि नहीं करता, या वो सोशलिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, तो दैट इज द इंडिविजुअल डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री ओनर। सो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कैपिटलिस्ट हो भी सकता है, कैपिटलिस्ट नहीं भी हो सकता है, बट ये है कि कॉमन ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बिजनेस पर्सन है वो कैपिटलिस्ट ही होगा, उसका पर्पस जो है वो उसका प्रॉफिट मेकिंग पर्पस ही रहेगा, राइट। अब हम लोग अब इंडिया की अगर बात करते हैं, तो अब जैसे टाटाज है, तो टाटाज में आई मीन उनका जो एक पर्पस है दैट इज नॉट सो प्रॉफिट मेकिंग। बेशक वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है टाटा कंपनी, बट अगर कभी आप रतन टाटा की कभी आइडियोलॉजी पढ़े आप, तो you'll come to know, तो he said कि we are not businessmen, so we are not here to make the profit, we are the industrialists. It means we are there to produce the things, right? business मतलब उन्होंने इसने अपना एक डिफरेंस बताया हुआ था, because I remember किसी ने कोट किया था उसको कि why the Ambani, he is the richest person I mean in the country, and I think second richest है world में, and why you are not there. So he just quoted कि he is a businessman and I am an industrialist. Bottom line says that the motive of the businessmen is earning profit, and the industrialist is there to produce the things. See, ideology के ऊपर depend करता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। बट ये था कि एक वो एरा था ऐसा कि जहां पर कैपिटलिज्म जो था वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था, कि लोग जो है आई मीन जो पुअर थे दे वर बिकमिंग मोर एंड मोर पुअर, और जो रिचर थे वो और ज्यादा प्रॉफिट बना रहे थे। पर फिलहाल तो हमारी कंट्री में भी कई जगह ऐसा है जहां पर ये जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं दे आर मेकिंग मोर एंड मोर profit. But now, like profit, as you can the Tata Group and companies, and those are not making that much profit as like the Ambani's. So, ma'am, they are just with the what of the government. So maybe government also. Government has a very important role in these type of strategies. So rest will be covering in your tomorrow's class.